नमस्कार। द भगवद गीता, भगवान का गाना, इज अ टाइमलेस स्क्रिप्चर। यह बहुत ही प्रोफाउंड विजडम देता है लाइफ्स जर्नी के लिए। चैप्टर 7 में ज्ञान विज्ञान योग, लॉर्ड कृष्णा रिवील्स द एसेंस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। वो माया से लिबरेशन का रास्ता दिखाते हैं, जो कि एक इल्यूजन है। दिस चैप्टर गाइड्स अस टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द डिवाइन प्रेजेंस विद इन एंड अराउंड अस। यह ट्रू डिवोशन और सुप्रीम रियलिटी को सरेंडर करने का महत्व बताता है। लेट अस डेल्व इनटू द प्रोफाउंड टीचिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। Chapter 7 of the Bhagavad Gita is a beacon of light. It serves as a guiding star, illuminating the path of wisdom and understanding for all who seek it. This chapter is not just a collection of verses, it is a profound source of enlightenment that has the power to transform lives. यह self-realization का रास्ता illuminate करता है. It shows us the way to understand our true selves, to look beyond the superficial layers of existence, and to connect with our inner divinity. The light on this path is not just physical but metaphorical, representing the clarity and insight that come with self-awareness. Lord Krishna, जो कि divine charioteer हैं, वो अर्जुना को wisdom देते हैं. In this sacred dialogue, Krishna imparts timeless wisdom to Arjuna, addressing his doubts and fears. This wisdom is not limited to the battlefield, but extends to the everyday struggles of life, offering guidance and solace. He explains the difference between knowledge and science. Knowledge, as described by Krishna, is the understanding of the eternal truths and the nature of the self. Science, on the other hand, is the systematic study of the material world. Both are important, but knowledge of the self is paramount for true liberation. वो लिबरेशन पाने के लिए इनकी सिग्निफिकेंस बताते हैं। लिबरेशन और मोक्षा is the ultimate goal of human life. It is the state of being free from the cycle of birth and death, and from the bondage of worldly attachments. Krishna emphasizes that true liberation comes from understanding the self and realizing one's unity with the divine. This chapter unveils the mysteries of Maya. Maya, or illusion, is the force that creates the appearance of the material world. It is the veil that obscures the true nature of reality. By understanding Maya, we can see beyond the illusions and recognize the eternal truths that lie beneath. ये divine के true nature को reveal करता है. The divine is not a distant, abstract concept, but a living presence that pervades all of existence. This chapter helps us to see the divine in everything and everyone, to recognize the sacredness of all life. It guides us to recognize the presence of God in all beings. This recognition fosters a sense of unity and compassion, breaking down the barriers of division and prejudice. It teaches us to see the divine spark in every individual, regardless of their background or beliefs. Yet devotion or surrender के महत्व पर जोर देता है. Devotion and surrender are essential aspects of the spiritual path. They involve letting go of the ego and trusting in the divine will. Through devotion, we cultivate a deep personal relationship with the divine. And through surrender, we find peace and fulfillment. Knowledge, गीता के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है। यह एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल को समझने में मदद करता है। यह सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है, बल्कि एक प्रोफाउंड विजडम है जो हमें जीवन के डीपर ट्रूथ्स को कॉम्प्रिहेंड करने में सक्षम बनाता है। इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। यह आत्मा की पहचान है जो हमें हमारे ट्रू एसेंस से जोड़ता है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि हम अपने भीतर की डिवाइन स्पार्क को पहचानें और उसे नर्चर करें। यह हमारे ट्रू नेचर को इटर्नल बीइंग्स के रूप में रियलाइजेशन है। हम सिर्फ फिजिकल बॉडीज नहीं हैं, बल्कि इटर्नल सोल्स हैं जो एक हायर पर्पस के लिए यहाँ हैं। यह रियलाइजेशन हमें एक डीपर सेंस ऑफ पीस और फुलफिलमेंट देता है। साइंस, ऑन द अदर हैंड, इस नॉलेज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को रिफर करता है। यह हमें टूल्स और टेक्निक्स प्रदान करता है जिससे हम इस स्पिरिचुअल विजडम को डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का इंटीग्रेशन हमें एक होलिस्टिक अप्रोच देता है। इट इज अबाउट लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द डिवाइन प्रिंसिपल्स। ये डिवाइन प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं कि हम कैसे एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें मॉरल और एथिकल गाइडलाइंस प्रदान करते हैं जो हमारे एक्शंस और डिसीजंस को शेप करते हैं। True knowledge leads to liberation. यह लिबरेशन सिर्फ फिजिकल कंस्ट्रेंट से नहीं है, बल्कि मेंटल और इमोशनल बैरियर से भी है। यह हमें एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में एलिवेट करता है, जहां हम ट्रू फ्रीडम और ब्लिस एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
यह हमें बर्थ और डेथ के साइकिल से फ्री करता है। यह साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन हमें बाउंड करता है, लेकिन ट्रू नॉलेज हमें इस साइकिल से मुक्त कर सकता है। यह हमें एक इटर्नल और इन्फिनिट एग्जिस्टेंस की ओर ले जाता है। साइंस एम्पावर्स अस टू लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस एंड मीनिंग। यह हमें प्रैक्टिकल टूल्स और मेथड्स प्रदान करता है जिससे हम अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को अचीव कर सकें। यह एम्पावरमेंट हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस देता है। टुगेदर ये दोनों सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ को इल्यूमिनेट करते हैं। नॉलेज और साइंस का कॉम्बिनेशन हमें एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस लाइफ जीने में मदद करता है। यह हमें एक क्लियर और इनलाइटेंड पाथ दिखाता है जिससे हम अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कर सकें। माया द इल्यूजनरी पावर हमारे ट्रू नेचर को वेल कर देती है। यह ड्युअलिटी और सेपरेशन की दुनिया क्रिएट करती है। हम डिजायर्स और अटैचमेंट्स के वेब में उलझ जाते हैं। दिस लीड्स टू सफरिंग एंड डिससैटिस्फैक्शन। लॉर्ड कृष्णा एम्फसाइजेस दैट माया परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्पररी इल्यूजन है। बाय सरेंडरिंग टू द डिवाइन हम इसकी ग्रिप से ओवरकम कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ सफरिंग। द डिवाइन कनेक्शन, डिवोटी एंड गॉड। भक्त और भगवान का रिश्ता प्यार और समर्पण का रिश्ता है। यह एक ऐसा बंधन है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह एक ऐसा संबंध है जो आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है और अनंत काल तक चलता है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता की बाहों में सोलिस पाता है, वैसे ही भक्त डिवाइन एम्ब्रेस में रिफ्यूज पाता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में वर्णन करना कठिन है, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। यह एक ऐसा क्षण है जब भक्त अपने सभी दुखों और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। ट्रू डिवोशन रिचुअल्स या सेरेमनीज के बारे में नहीं है। यह हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होने वाली भावना है। यह एक ऐसा प्रेम है जो किसी भी बाहरी आडंबर से परे है। यह एक ऐसा समर्पण है जो केवल भगवान के प्रति होता है। इट इज अबाउट कंप्लीट सरेंडर टू द डिवाइन विल। यह भगवान की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण है। यह एक ऐसा समर्पण है जो किसी भी स्वार्थ से परे है। यह एक ऐसा समर्पण है जो केवल भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है। लॉर्ड कृष्ण हमें विश्वास दिलाते हैं कि वह हमेशा अपने भक्तों के साथ है। वह हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि वह हमारे हर कदम पर हमारे साथ है। वह हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि वह हमारे हर दुख और सुख में हमारे साथ है। वह उनकी स्पिरिचुअल जर्नी पर उनका गाइडेंस और प्रोटेक्शन करते हैं। वह हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। वह हमें हमारे हर कदम पर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। He grants them liberation from the cycle of birth and death. वह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करते हैं। वह हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करते हैं और हमें अनंत शांति और आनंद की ओर ले जाते हैं। यह भगवान और भक्त के बीच का एक अनमोल रिश्ता है जो हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिवाइन। भगवान श्री कृष्ण अपने डिवाइन मैनिफेस्टेशंस, अपनी विभूतियों को प्रकट करते हैं। वह सूर्य और चंद्रमा का स्प्लेंडर है। वह पहाड़ों की स्ट्रेंथ और समुद्र की वास्टनेस है। वह धरती की फ्रेग्रेंस और आग की ब्रिलियंस है। ये विभूतिस उनसे अलग नहीं है। दे आर एक्सप्रेशंस ऑफ हिज इन्फिनिट पावर एंड ग्लोरी। बाय रिकॉग्नाइजिंग द डिवाइन इन ऑल थिंग्स, हम अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करते हैं। We realize our interconnectedness with all of creation. God's presence in all beings. This chapter की सबसे profound teachings में से एक है omnipresence of God. भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह सभी प्राणियों के हृदय में reside करते हैं। He is the silent witness to all our thoughts, words and actions. यह realization हमें awe और wonder से भर देता है। It reminds us of the sacredness of all life. It inspires us to live with compassion, love, and respect for all beings. The path to realization. भगवान कृष्ण सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ को आउटलाइन करते हैं। He emphasizes the importance of cultivating knowledge and wisdom. वह हमें material possessions से detachment का अभ्यास करने के लिए encourage करते हैं। He stresses the significance of devotion and surrender to the divine. रास्ता कई बार challenging लग सकता है, but with faith, perseverance and the grace of God, हम सभी obstacles को दूर कर सकते हैं। We can attain liberation from the cycle of birth and death.
Conclusion: Embracing the Divine Wisdom. Chapter 7 of the Bhagavad Gita आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना है. It guides us towards self-realization and liberation. यह हमें knowledge, science and devotion का महत्व सिखाता है. यह माया के illusionary nature और omnipresence of God को unveil करता है. By embracing the teachings of this chapter, हम अपनी lives को transform कर सकते हैं. We can live with purpose, meaning and fulfillment. We can experience the divine presence within and around us.